یہ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بیشتر سرکاری اور نجی اداروں پر واٹر کارپوریشن کے نادہندہ نکلے۔ مختلف اداروں پر 70 ارب روپے سے زائد واجبات ادا ہیں۔ ریونیو اور میٹر ڈویژن کی نااہلی کے باعث ادارے کی ریکوری متاثر، ساتھ ہی ملازمین کی ادائیگیاں بھی رک گئی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے، احسن عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، کراچی واٹر کارپوریشن میں جو ہے وہ ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ واجبات جو ہے 5.5 ارب سے جو ہے وہ تجاوز کر گئے، ادائیگیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ریونیو RRG ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اچانک کارکردگی جو ہے وہ نیچے کی جانب جو ہے وہ جانے شروع ہو گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ رہنما ابکار یونین کے موجود ہے۔ جنید صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ادائیگیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ ریونیو ڈپارٹمنٹ RRG کیا کر رہا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے واٹر بورڈ کے محنت کشوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ دیکھیے، ہمارا جو DMD RRG آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ انتہائی ناکارہ انسان ہے۔ ان کو ادارے کے ملازمین کی ادائیگی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ ایک سیاسی نظریے پہ چل رہے ہیں، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو نئے CEO صاحب آئے ہیں ان کو کس طرح فیل کیا جائے۔ اب ان کی اس جنگ کے اندر جو تکلیف اٹھا رہا ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ملازم اٹھا رہا ہے۔ دیکھیں، دسمبر 2020 کے اندر ہماری ریکوری تھی 1 ارب 40 کروڑ روپے۔ آج ستمبر 2023 کے اندر آپ ریکوری لے کے آ گئے 1 ارب 20 کروڑ روپے، جبکہ آپ کا ٹیرف 7 دفعہ ریوائز ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں CEO صلاح الدین صاحب سے، میئر کراچی سے، کہ ایک تو ہم نے ان کے پرموشن کے اوپر عدالت کے اندر کیس دائر کیا ہوا ہے، اور ابھی ہم نے کل ارجنسی کی ان کی اپنی حیثیت پہ جو 16 گریڈ کی ان کی حیثیت ہے وہاں پہنچیں۔ تو آپ خدارہ CEO صاحب، آپ اصلاحات کی جو بات کر رہے ہیں، آپ جب تک ہنگامی بنیادوں پہ، جنگی بنیادوں پہ کام نہیں کریں گے، بغیر لوگوں سے ڈرے ہوئے، ادارے کے ملازمین کا نہ پہلے کچھ ہو سکا ہے نہ آئندہ کبھی ہو سکے گا۔ بہت شکریہ ناظرین۔ جنید خان جو ہے وہ اس وقت تفصیلات بتا رہے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ محکمے کو جو ہے وہ اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے تو درست کرنا ہوگا، صحیح سمت میں جو ہے وہ RRG ڈپارٹمنٹ کو اور میٹر ڈویژن کو لانے کے بعد ہی ملازمین کے جو ادائیگیاں ہیں وہ ادا کی جا سکیں گی، ادارے میں اصلاحات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ MD واٹر کارپوریشن، میئر کراچی اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو نمائندگان ہیں ان سے اپیل کی ہے جنید صدیقی نے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں تاکہ ملازمین کا حق ان کو مل سکے اور ادارہ جو ہے وہ بہتر سمت کی جانب گامزن ہو سکے۔ جی اب آپ کو بتائیں کہ آل کراچی جیولرز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے گولڈ سیکٹر میں بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ حسین قریشی کا کہنا ہے کہ ہر سیکٹر میں اچھے برے لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غلط کام کرنے والوں کی نشاندہی کی جائے، ہم تعاون کریں گے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ سونے کے اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن، مارکیٹ کے سٹے باز قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ چیئرمین آل کراچی جیولرز مینوفیکچر ایسوسی ایشن حسین قریشی نے سٹے بازوں کے خلاف کارروائی میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ بولے، ہر سیکٹر میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ میں ملوث گولڈ کے کاروبار سے وابستہ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ان لوگوں کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہیں، جو بلیک مافیا ہے، یا خصوصی طور پہ آپ نے دیکھا جو ڈالر کے ریٹ بڑھا رہے تھے، اس طرح کی جو مافیا تھی، ابھی آپ نے دیکھا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، تو یقیناً ہر سیکٹر میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم تو اس طرح کی کارروائیوں کی بالکل حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ حسین قریشی نے کہا، جیولر سیکٹر میں کہیں خامیاں ہیں تو انہیں دور کیا جائے، مگر تحقیق کے بعد کارروائی کی جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر صحیح سمت میں کوئی کارروائی ہوتی ہے اور لیگل وے میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس کارروائی کے دوران اگر حکومت کوئی کر رہی ہے اور حکومت کہیں سمجھتی ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں غلط کام ہو رہا ہے تو اس کی نشاندہی کریں، ایسوسی ایشن بالکل تعاون کرے گی۔ آل کراچی جیولرز مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے مطابق سٹے بازوں کے خلاف کارروائی سے دکانداروں کو فائدہ ہوگا۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس ملازمین کے واجبات کا حجم 3 ارب سے بڑھ کر 6 ارب ہو گیا ہے۔ سٹی 21 پر خبر نشر ہونے کے بعد مسئلے کے حل کے لیے واٹر کارپوریشن کی انتظامیہ نے CBA رہنماؤں کو طلب کر لیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ملازمین کے واجبات 6 ارب روپے تک پہنچ گئے۔
रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन वाजिबात के लिए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कारपोरेशन की सौदाकार यूनियन मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के चेयरमैन इरशाद खान ने इस मसले के हल के लिए बुलाए गए इजलास में ठेकेदारों को अदायगी 6 माह में मौखर करने की तजवीज़ दी। साथ ही स्क्रैप फरोख्त करके वाजिबात अदा करने का मुतालबा कर दिया। हमने कहा है कि तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए का स्क्रैप पड़ा हुआ है, इसको बेचें। सिंध गवर्नमेंट पे हमारे वाजिबुल अदा कुछ रकम है वो उनसे ले लें, नहीं तो सिंध गवर्नमेंट से ग्रांट ले लें। और अगर अभी इस वक्त तक जो है इंतज़ामिया जो है वो खामोश है और सुन हुई है, शायद सत्तू पी के सो रही है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि हम खामोश नहीं रहेंगे। इस मसले पे अब हम सीरियस हैं, मैदान में आ गए हैं। CBA के दीगर रहनुमा कहते हैं इदारे की काली भेड़े मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी में रुकावट हैं। वाजिबात जो है पिछले कई माह से जो है उस अंदाज से नहीं हो रहे जिस तरह से हमारी पहली मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि 20 करोड़ हर महीने जो है वाजिबात की सूरत में मुलाजमीन को दिए जाएंगे। अभी तक उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे 2018 से लेके अभी तक की जो मुलाजमीन हैं वो परेशान हैं। जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको ना कोई पेंशन मिली, ना कोई वाजिबात उनके अदा हुए। अगर किसी को कुछ अदा हुई भी तो बिल्कुल टुकड़ों में, जैसे ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर उनकी अदायगी हुई। CBA के रहनुमाओं का कहना था कि मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी पर ज़बानी जमा खर्च बहुत हो चुका, अमली इक़दामात ना हुए तो एहतजाज का हर रास्ता इख्तियार किया जाएगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंधाबाद गार बोर्ड ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सवालात खड़े कर दिए। सीनियर नायब सदर महमूद शाहनवाज ने कहा कि 1.5 माह में फी लीटर डीजल 58 रुपए तक महंगा कर दिया गया। ज़राई शोबे की पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से नई फसल में गन्ने और गंदम की लागत मजीद बढ़ चुकी है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सिंधाबाद गार बोर्ड का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सिंधाबाद गार बोर्ड सीनियर नायब सदर महमूद शाहनवाज ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1.5 माह में तेजी से इजाफा किया गया है। ये फैसला ज़राअत के लिए शदीद मनफी असरात मरतब करेगा। महमूद शाहनवाज ने कहा कि ट्रैक्टर से जमीन की तैयारी में खराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। छोटे काश्तकारों को तो कोई कर्जा भी नहीं देता। बताया कि 1.5 माह से कम अरसे में 1 लीटर डीजल 58 रुपए महंगा कर दिया गया है। बताया कि बीज लगाने से पहले का खर्चा 1 साल में 1.5 गुना बढ़ चुका है। ये जो एक होशरुबा इजाफा है, पूरी हमारी कौम उससे एक अफेक्टेड है, लेकिन जाहिर सी बात है ज़राअत में उसका इम्पैक्ट मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा पड़ता है। बीज लगने से पहले का ख़र्चा पिछले साल 1.5 साल में कोई 2.5 गुना बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ये कि ये बढ़ गया, फिर देहात में मईशत होने की वजह से हमें तो एक कील को लेके जाने के लिए भी 3-3, 4-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब तो मोटरसाइकिल में जो 50-100 रुपये का पहले पेट्रोल डलता था, अब तो पेट्रोल पंप वाले घुसने नहीं देते हैं 50-100 के पेट्रोल से। सिंधाबाद गार बोर्ड के सीनियर नायब सदर ने कहा कि 1.5 माह में डीजल 58 रुपए फी लीटर महंगा होने से नई फसल की लागत बढ़ चुकी है। ये भी इंकशाफ किया कि अगले सीजन में गंदम 120 रुपए फी किलो से जायद होगी, जिससे आटे की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। आपकी गंदम की कीमत 15-16 रुपए से बढ़ के 100 से बढ़ के इस वक्त 4,000 रुपये, और आजकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से ये 4,000 रुपये में भी काश्तकार को वारा नहीं खाएगी। और जब वारा नहीं खाएगी तो 100 रुपये वाली गंदम का आटा 160 और 70 का बिक रहा है, और ये गंदम ही जाके 130-40 रुपए की बैठेगी। तो आप ये समझें कि कहीं भी आटा 200 रुपए से कम का तो नेक्स्ट सीजन में बिकना बड़ा दुश्वार और मुश्किल हो जाएगा। सिंधाबाद गार बोर्ड के सीनियर नायब सदर ने कहा कि जो चीनी 80 से 90 रुपए किलो थी वो बढ़कर 160 से 180 रुपए तक फरोख्त हुई, और 2 साल के अंदर 50 से 60 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आटा 160 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। साफ कहा कि चीनी और गंदम की स्मगलिंग को हर सूरत रोकना होगा, तभी कीमत कंट्रोल में आएगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। कराची से अंदरून मुल्क पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुअत्तल कर दी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल के बायस मुमकिना पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान और शहरियों को दरपेश मसाइल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। हड़ताल भी होगी और दमादम मस्त कलंदर भी होगा। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद कर दी। ऑयल टर्मिनल्स और मुख्तलिफ ऑयल टैंकर्स के अड्डों पर टैंकर्स खड़े कर दिए गए, जिसके बाद तेल की सप्लाई मुअत्तल कर दी। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर आबिदुल्ला आफरीदी ने साफ कह दिया कि हड़ताल के नतीजे में आवाम को पेश आने वाले मसाइल के जिम्मेदार एसोसिएशन नहीं बल्कि हुकूमत होगी। कम अज कम 3-4 साल इस बातों पर लगाया। जब भी हम लोग एहतजाज करते हैं गवर्नमेंट के खातिर, हम लोगों ने खोलते है दोबारा हड़ताल खोलते है,
और आवाम की वजह से हम लोग को जो आवाम को तकलीफ नहीं होगा। अभी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट होगा जो हम लोग का मसला नहीं कर रहे हैं ना, जिम्मेदारी तो उसका होगा, हम लोग का तो नहीं है। हम लोग अपना गाड़ी नुकसान पे तो गाड़ी हम नहीं चला सकते। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था कि इंतजामिया के कहने पर वाइट ऑयल पाइपलाइन के मुताबिक अपने ऑयल टैंकर्स तैयार किए, लेकिन इसमें ताहाल कोटा नहीं मिल सका है, जबकि मौजूदा महंगाई की लहर के बावजूद किरायाजात भी नहीं बढ़ाए गए हैं। टोटल हमारे पास काम 3000 गाड़ी गए, कुछ 4000 गाड़ी हमारे पास पहले थी, 2000 गाड़ी फालतू बीच में और आपने डाल दी, काम और कम हो गया। अब पाइपलाइन में हम बोल रहे हैं कि हमें कोटा दिया जाए, 60% कोटा दिया जाए इसमें, उसमें हमें क्या कर रहे हैं, जब थोड़ा सा हम प्रेशर डालते हैं तो हमारी प्रायोरिटी बढ़ा दी जाती है, प्रेशर नहीं डालते तो वो 20% भी हमें काम नहीं मिल रहा। ऑयल टैंकर एसोसिएशन के रहनुमा ने धमकी दी कि मुतालबात हल न होने की सूरत में हड़ताल का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में खुले मैनहोल्स लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगे। शहर के बेशतर मकामात पर गटर के ढक्कन गायब हैं। ऐसा ही कुछ गार्डन धोबी घाट पर भी देखने को मिला। मकीन कहते हैं स्कूल्स और मस्जिद के दरमियान खुला गटर किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। शहर कायद में गटर के ढक्कन लगाने की मुहिम काम न आई। आज भी बेशतर मकामात पर खुले मैनहोल्स लोगों के लिए हादसे का सबब बन रहे हैं। गार्डन धोबी घाट में मस्जिद के सामने गटर का ढक्कन गायब होने से नमाजियों को परेशानी का सामना है। शहरी कहते हैं कई दफा बेदहानी में लोग भी इस गटर में गिरकर जख्मी हो चुके हैं। कल वो सरदार बलोच के पास भी हम लोग गए हैं, उनको बताया है कि ये हाल है। यहाँ से जनाजा गुजरता है 203 मरतबा, यहाँ हमारे आंखों के सामने पूरा जनाजा गिर जाता है, ये पानी का भर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है इधर। मस्जिद के सामने स्कूल भी मौजूद है और खुला मैनहोल स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खतरे की अलामत बना हुआ है। कोई गिर नहीं जाए, गाड़ी नहीं मार जाए, तब हम भागते हम गिर जाते हैं। इलाका मकीनों ने मुताल्लिक इंतजामिया से खुले गटर पर ढक्कन लगाने का मुतालबा कर दिया ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सकें। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। महकमा रेलवे का ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना सका। अंदरूने मुल्क से आने वाली गाड़ियां आज भी ताखीर का शिकार हैं। कई गाड़ियां घंटों ताखीर से कराची पहुंचेंगी। सबसे ज़्यादा ताखीर का शिकार खैबर मेल रही, जो 2 घंटे 33 मिनट ताखीर से पहुंची। इलामा इकबाल और कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट की ताखीर का शिकार हैं। मिल्लत एक्सप्रेस 2 घंटे 5 मिनट, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 3 मिनट की ताखीर से आएगी। तेज़ गाम 1 घंटा 50 मिनट, ग्रीन लाइन 1 घंटा 5 मिनट और रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटे की ताखीर से कराची पहुंचेगी। अब आपको बताएं कि जामिया कराची में इवनिंग प्रोग्राम मुअत्तली का मामला। जामिया कराची में मुतालबात मंजूरी के लिए असातिज़ा की हड़ताल जारी। वाइस चांसलर भी अपने फैसले पर डट गए। असातिज़ा के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामिया कराची में इवनिंग प्रोग्राम की मुअत्तली, वाइस चांसलर और असातिज़ा में कशीदगी बढ़ गई। अंजुमन असातिज़ा की जानिब से इवनिंग क्लासेस का बाइकॉट 5वें रोज भी जारी रहा, जिस पर तलबा ने तशवीश का इजहार किया। टीचर्स को एटलीस्ट अपने वजह से स्टूडेंट्स का लॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर स्टूडेंट्स सही से पढ़ेंगे नहीं, बाइकॉट होता रहेगा, तो फिर बच्चे कैसे, उनका अच्छा फ्यूचर ब्राइट होगा। इवनिंग का सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ और आते ही उन्होंने बाइकॉट कर दिया, तो बच्चों के पेपर होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा इसमें। इधर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा कि इवनिंग प्रोग्राम पहले कामयाब था लेकिन अब कामयाब नहीं, जबकि इवनिंग प्रोग्राम के असातिज़ा को गुज़िश्ता साल इवनिंग प्रोग्राम की मद में 11.5 करोड़ अदा कर चुके हैं। इवनिंग प्रोग्राम एक दौर के अंदर कामयाब प्रोग्राम था, पर अब ये इवनिंग प्रोग्राम डेफिसिट में जा रहा है। 1 साल के अंदर मैंने 11.5 करोड़ रुपए की इनकी पेमेंट की है। दूसरी जानिब सदर अंजुमन असातिज़ा डॉक्टर सालिहा रहमान ने वाइस चांसलर के बयान की तरदीद की और कहा कि असातिज़ा का 1 आइटम एजेंडा नहीं, 2022 तक 8 या 8.5 करोड़ बकिया हैं जो यूनिवर्सिटी ने अदा करने हैं। वाइस चांसलर साहब ने हमसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा कि मैं 50, पहले तो उन्होंने कहा कि 1 आइटम एजेंडा था, मीटिंग नहीं थी जो उनसे थी, तो उन्होंने कहा अच्छा शायद मैं उसको गलत समझाऊं, लेकिन बहरहाल मैं इस वक्त इवनिंग के हवाले से बात कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों को 11.5 करोड़ पे कर चुका हूं। मैंने कहा बिल्कुल आप पे कर चुके हैं, लेकिन तकरीबन 8-8.5 करोड़ रहते हैं 2022 तक के, और फिर इस सेमेस्टर के काउंट करके ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक हमारे अभी भी ड्यूज़ रहते हैं।
शेख उल जामिया डॉक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद इराकी ने असातिज़ा से बाइकॉट ख़त्म करने की दरख्वास्त की और कहा कि यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से भी फंड्स की कमी का सामना है। कैमरामैन इमरान AK के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और धचका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से अवाम मायूसी का शिकार हैं। बात करेंगे इस हवाले से हमना निसार से। हमना, बताइएगा। बिल्कुल जी, अब आवाम के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद दीगर सवारियों की तरह ट्रेन की के किरायों में भी इजाफा हो गया है। और इस बार अभी नोटिफिकेशन महकमे रेलवे की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें ट्रेन के किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ये जो इजाफा है 1.5 माह के अंदर तीसरी बार किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के जो शहरी हैं, आवाम है, काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किराए में इजाफे से क्या मुश्किलात का सामना है? गरीब लोग के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है। जो नीचे वाले तबके वो तो बहुत ज़्यादा किराया हो गया है। ये किराया तकरीबन 1100 था खैरपुर का, अभी 1300 मांग रहे हैं और 1700, बहुत ज़्यादा किराया हो गया है। ये हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि किराया कम करें। ये जो गरीब लोग हैं उसको सहूलत मुहैया होने की ज़रूरत है, यही बात है। क्या कहेंगे सर, किराए में इजाफा हुआ है, किस तरह आपके सफ़र करना मुश्किल हो गया है? मैम, आवाम जो सी है वो खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है उसे, और किराए कैसे देगी वो? आप समझ लें कि 1700 लाहौर से हम दे के आए हैं, करीबन 3100 रुपये दे के आए हैं। इधर हमसे अभी 4000 रुपये वापसी का मांग रहे हैं, तो सीधा सीधा इन्होंने 900 रुपये बढ़ा दी है। तो इतना ज़्यादा इजाफा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवाम परेशान है खाने पीने के लिए, तो किराए किधर से देगी ये आवाम? तो हुकूमत का ये काम बनता है, पर हुकूमत जो उनसी है वो खुद खा पी रही है, तो आवाम का कोई बंदा सोच नहीं रहा। तो बाकी हमें भी ख्याल रखना चाहिए, जो वोट देना है हमने, आगे हमारे इलेक्शन आ रहे हैं, तो सही बंदा मुंतखब करना चाहिए हमें, ताकि वो आवाम के बारे में सोच सके। जी, इसके अलावा और भी हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे ट्रेन के इंतज़ार में हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी मैडम, बताइएगा, ट्रेन की कीमतों में तीसरी बार 1.5 माह के अंदर इजाफा हुआ, क्या कहेंगी, कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सफ़र करना? भाई वो मुश्किल तो हो जाना है कि बेटा, वो हमारी तमरक होगी एकदम, घर से निकलना पड़े। अभी हूँ ट्रेन बिल्कुल सारियाँ चलियाँ गई, अभी मुझे बहुत मुश्किल हो रही समझ आ गई। और समझे कि अभी पता नहीं रात इधर गुजारने हैं कि अभी मेरा साथी कह रहा है कि भाई मैं दूसरी ट्रेन पे जाने हैं। बताइएगा, जब ट्रेन की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, किराया इतना बढ़ गया है, तीसरी बार इजाफा हो गया है, मैंने मतलब आज से 1.5 माह पहले जो किराया था उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, कल से कीमतें आप मज़ीद ज़्यादा देकर जाएंगी, किस तरह जाएंगी? कैसे एक आम इंसान, एक आम आवाम ये बर्दाश्त करे किराए के इतने बिल? बेटा बर्दाश्त तो करनी पड़नी है ना, फिर की करे बंदा। एक मिसाले बच्चे छोटे छोटे ने, वो सारे साढ़े आस्ती डंड हो गए, दोवां दियां लत्तां टुटियां हुई, ये देख साड़ियाँ स्टिकां भी देखा ना, आख भाई वो स्टिकां अभी मुश्किल हो रही है, किमें बंदा जावे? ऐसे तो जो सानू तो बेनज़ीर मदद देंदी है, फलानी देंदी है, वो दूसरा केड़ा वो देंदी है, वो कोई भी नहीं सानू मदद मिल रही। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ आवाम मौजूद थी जिन्होंने बताया कि किस तरह इनका गुजारा होगा जिस तरह ट्रेन की कीमतों में ये तीसरी बार इजाफा हुआ है। यहाँ शहरी जो है काफ़ी परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं, इनका गम और गुस्सा भी है। मैं कहते हैं कि कितनी बार ये गम और गुस्सा का इजहार करें, क्योंकि हर चीज़ की कीमतों में इसी तरह रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। किस पर शिकायत करें, किस पर शिकायत ना करें, ये सवालिया निशान है। और यहाँ पे कुछ शहरी ये भी कहते हैं कि हमारे पास ये एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पे ये जो सूरत हाल बनी है कि हम आइंदा किसको इलेक्शन में वोट दें, किसको जितवाएं, ये भी सोचने वाली एक बात बन गई है। जी। और शहर कायद में पानी का बहरान फिर सर उठाने लगा। शाह फैसल टाउन के मकीन बूंद बूंद को तरस के यूसी 8, 9 और 10 पर मुश्तमिल 1 नंबर के मकीन पानी खरीदने पर मजबूर हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शाह फैसल टाउन 1 नंबर में पानी का मसनूई बहरान कई माह से जारी है। मकीन कहते हैं कि 3 यूसीज पर मुश्तमिल आबादी के एक हिस्से को सीवरेज का मिला आलूदा पानी फराहम किया जा रहा है। ये हमारे 3 यूसी लगते हैं और शुरू की यूसी 10 में तो पानी आता है गटर आलूदा। उसके बाद 9, 8, 7 के अंदर तो कई अरसे से पानी ही नहीं है।
वहाँ पे टैंकर माफिया के रहमो करम पे लोग चल रहे हैं और वो भी मन मांगे पैसों पे पानी देते हैं। तो पानी का मसला तो आप बिल्कुल भी इनके ध्यान में नहीं आने कि पानी तो बेसिक चीज़ है। सारी जो जितनी भी जिस्मानी बीमारियाँ वो पानी के ज़रिए ही इंसान के जिस्म में दाखिल होती हैं। जब आप अपनी नई नस्ल को इन बीमारियों की तरफ लेके जाएंगे तो नस्ल आगे कैसे ग्रो करेगी। इलाके के दूसरे हिस्से का पानी वॉल टेम्परिंग और खस्ता हाल लाइनों के बायस फराम नहीं हो रहा। मकीन कहते हैं कि लाइनों की दुरुस्तगी के लिए वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम आवाम को अपनी मदद आपके मशवरे दे रहे हैं। हमारा वाल बंद किया जाता है, पानी का प्रेशर नहीं खोला जाता, वहाँ से प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से अलहदा सोसाइटी को पानी तकरीबन नाज़र खान को मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। हम पानी मीठा तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि बोरिंग का पानी फिर इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी कैन वगैरह टैंकर वगैरह खरीदने पड़ते हैं। अभी इतनी शक्कत हमारे में है नहीं। हाँ तो सहबरी गटर के पानी के मच्छर इतना है, रातों में नींद ना है, घरों में परेशानी, हर बच्चा बीमार है। मीठा पानी आता उसमें गटर का पानी। अब रोड पे जाएं तो ज़ाहिर है गंदे पाँव हो रहे हैं, सब घरों में जरासीम जा रहे हैं, बच्चे बीमार हैं। शाह फैसल टाउन 1 नंबर के रिहायशियों का कहना था कि लाइनें दुरुस्त न करके टैंकर माफिया की सरपरस्ती की जा रही है, जबकि वॉल टेम्परिंग भी पानी बहरान की अहम वजह है। आंखों की बीमारी के आए अद्वियात की कीमतें ही बढ़ गईं। नायब सदर होलसेल मेडिसिन मार्केट ने आंखों की अद्वियात की कीमत में 150% तक इजाफे का दावा कर दिया। आमिर मलिक ने कहा है कि डिमांड बढ़ने की वजह से रिटेलर्स ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कीमत 60 से बढ़कर 150 रुपए तक पहुंच गई है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में आशोब चशम का डेरा, अद्वियात की कीमतें आसमान को छूने लगीं। आशोब चशम की वबा फैलते ही आंखों की अद्वियात नायाब हो गई। ब्लैक मार्केटिंग के जरिए कीमत भी दुगनी कर दी गई। नायब सदर होलसेल मेडिसिन मार्केट आमिर मलिक ने कहा, अचानक डिमांड बढ़ने से कंपनी की सप्लाई मुतासिर हुई। आंखों के कतरों की दवा की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गई, जबकि मल्टीनेशनल कंपनियों के ड्रॉप्स 160 रुपए से बढ़कर 250 रुपए तक पहुँच गए। जो ड्रॉप 60 रुपए का था वो 150 रुपए तक पहुँच गया है, 140 तक पहुंच गई। और जो ड्रॉप जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियां जो बनाती हैं, जिनका ड्रॉप 160 रुपए का ये होता था, वो 180 और 200-250 रुपए तक पहुंच गया है इस टाइम। आमिर मलिक ने आंखों के कतरों की कीमत में इजाफे का मलबा रिटेलर्स पर डाल दिया। बोले, रिटेल में दुकानदार सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अभी आप अगर ये अगर आप और हॉस्पिटलों के बाहर जो रिटेल शॉप बनी हुई हैं, तो जाहिर है जब आप दवाई लेने जाते हैं तो वो आपको जब दवाई नहीं मिल रही होती तो वो आपको कुछ पैसे ज़्यादा रख के दवाई देते हैं, जो कि गलत है। होलसेलर्स ने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुहीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। डॉलर के पर कट गए, रुपए के मुकाबले मुसलसल गिरावट के शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 296 रुपए से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए पर बरकरार। यूरो 6 रुपए और बरतानवी पाउंड 10 रुपए सस्ता हो गया। डॉलर की बेकदरी जारी है और रुपए की बढ़ती कदर में तसलसल बरकरार है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 295 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह से अब तक 11 रुपए 15 पैसे सस्ता हो चुका। माहिरीन का कहना है, डॉलर सस्ता होने से दरामदी लागत कम होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार में कमी होगी। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए पर बरकरार रहा। यूरो 6 रुपए सस्ता होकर 318 रुपए और बरतानवी पाउंड 10 रुपए कमी से 369 रुपए का हो गया। रेवेन्यू जनरेट करने की नई हिकमत अमली। FBI की जानिब से 7E नफाज के मामले पर रियल एस्टेट सेक्टर पर 2.5 करोड़ रुपए मालियत से ज़ायद प्रॉपर्टी पर टैक्स वसूल करने की तैयारी कर ली। अयाज राना की रिपोर्ट। मुश्किल टैक्स हदफ कैसे पूरा किया जाए, FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर पर 7E का निफाज कर दिया। 2.5 करोड़ रुपए मालियत से जायद प्रॉपर्टी पर FBR की फेयर मार्केट रेवेन्यू पर 1% हर साल टैक्स देना होगा। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौर का कहना है कि पंजाब में रियल एस्टेट सेक्टर ने कोर्ट से रिलीफ हासिल कर लिया। मुल्क में एक कानून होना चाहिए। अब आप ये देखें कि पंजाब को वो 7E का रिलीफ दे दिया गया। क्या पंजाब अगर पाकिस्तान का शहर है तो क्या कराची जो 70% टैक्स देता है वो पाकिस्तान का शहर नहीं है? तो हम ये एहतजाज थ्रू मीडिया भी कर रहे हैं, हम FBR में भी कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी कर रहे हैं
کہ خدارہ پاکستان میں ایک قسم کا قانون نافذ کیے جائیں, صوبے وائز قانون نہ, یہ فیڈرل قانون ہے 7E جو ہے, تو 7E کو اگر پنجاب میں ریلیف دیا گیا ہے, خدارہ اس کو سندھ میں ریلیف دی جائے. سب سے زیادہ کنسٹرکشن جو ہے تو کراچی شہر میں ہوتی ہے. حنیف گور کا کہنا تھا کہ ہم نے نگراں وزیر اعظم اور آرمی چیف سے بھی اس معاملے پر بات کی ہے. ہم نے وزیر اعظم انور کاکڑ صاحب سے کی ہے, اور ہم نے آرمی چیف کو بھی یہ مطالبہ کیا ہے, اور انہوں نے ہم سے یہ وعدے کیے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایشو کو ہم ٹیک اپ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح پنجاب میں ریلیف ملا ہے بہت جلد آپ کو کراچی اور سندھ میں ملے گا. حنیف گور پر امید ہے کہ جلد 7E معاملہ طے ہو جائے گا. کیمرمین فرحان احمد کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. کاشتکار کو مالی معاونت کی سہولت. اسٹیٹ بینک بینکنگ سروسز کارپوریشن کے زیر اہتمام کاشتکاروں کی مالی معاونت کے لیے آگاہی پروگرام. کراچی، لاہور، کوئٹہ، راولپنڈی اور پشاور سمیت بڑے شہروں میں سلسلہ وار 5 ورکشاپس کا انعقاد کیا گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق 5 سالوں میں زراعت، پولٹری اور ماہی گیری میں 5 لاکھ کاشتکاروں کی شمولیت کے لیے کوشاں ہیں. ورکشاپس میں کمرشل بینکس کے نمائندوں، صوبائی زرعی محکموں، محکمہ لائیو اسٹاک اور ماہی پروری کی بھرپور شرکت. اس پروگرام سے اسٹیٹ بینک کمرشل بینکس، وفاقی اور صوبائی محکموں کی کاشتکاروں سے منسلک کرنے میں مدد ملی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق زرعی قرض مشاورتی کمیٹی کی تجویز پر اس اقدام کا مقصد کاشتکاروں میں مالی اسکیموں کی آگاہی پیدا کرنا ہے. پروگرام کا مقصد نئے کاشتکاروں کی مالی معاونت، قرض لینے والوں کی تعداد بڑھانا. بتایا گیا ہے کہ پروگرام میں کاشتکاروں کی مالی وسائل تک مساوی رسائی پر توجہ دی گئی ہے. مشکلات میں گھری ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر. کپاس کی ریکارڈ پیداوار. 15 ستمبر تک جننگ فیکٹریوں میں کپاس کی آمد گزشتہ سیزن کے مقابلے کپاس کی آمد 39,33,000 بیل سے بھی تجاوز کر چکی. جننگ فیکٹریز میں کپاس کی آمد کی رپورٹ جاری کر دی گئی. رپورٹ کے مطابق 15 ستمبر 2023 تک کپاس کی آمد 39,33,000 بیلز پہنچی ہے, جو گزشتہ سیزن میں 15 ستمبر 2022 تک 21,87,000 بیلز کپاس کی پہنچی تھی. رپورٹ کے مطابق پنجاب میں کپاس کی آمد 44% اضافے سے 15,44,000 بیلز رہی. سندھ میں کپاس کی آمد 115% اضافے سے 23,89,000 بیلز ریکارڈ کی گئی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکسٹائل ملز 15 ستمبر تک 33,12,000 بیلز کپاس کی خریداری کر چکی ہیں, اور کپاس کے برآمد کنندگان نے 15 ستمبر تک 4,01,82 بیلز خریدے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کپاس کی فصل سے پیداوار بڑھنے سے ملکی معیشت کے لیے بہت مدد ملے گی. MCB بینک نے ایک ایکسچینج کمپنی قائم کرنے کے ادارے کا اعلان کر دیا. MCB بینک اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری منظوری ملنے کے بعد ایکسچینج کمپنی قائم کرے گا. MCB نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ MCB بینک نے ایکسچینج کمپنی کو کھولنے کا پلان بنایا ہے, اور اس سلسلے میں MCB بینک اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری منظوری ملنے کے بعد ایکسچینج کمپنی قائم کرے گا. اعلامیے میں کہا ہے کہ بینک 1 ارب روپے کے اعداد و شمار سرمایہ کے ساتھ ایکسچینج کمپنی قائم کرے گا.